Name of the second chapter is Contents of Gita Summarized. So we have been discussing this chapter since last 3 days, and we understood very important subject matter. That yesterday, just like yesterday, we discussed who is a bona fide spiritual master, how to understand that who is a bona fide spiritual master. The day before yesterday, we discussed about the general etiquettes which we should follow, the etiquettes in dealing with our superiors, dealing with our devotees and Vaishnavas, Brahmanas. And then the day before yesterday, we discussed about the self-realization. Who is a person of self-realization and who is person in ignorance? So all of these topics in a great detail at length we discussed. So today we'll continue second chapter about the raging our consciousness, because Arjuna is perplexed, Arjuna is confused. Now Krishna will start speaking, and he will take a very different approach altogether to convince Arjun to perform his duty. So what is his approach? So we'll see today. So let us chant prayers and then we'll discuss. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kathanchan smrite yasmin duskaram sukaram bhavet विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यनमामितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमनंदे हरि बोल। So we'll start our activity, first activity with quiz. So we'll be discussing the result of yesterday's quiz. So I am going to share the screen. All of you can see here your result. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, so here are the questions. So we'll see first the question.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. Okay, so the first question is Prabhupada firstly went to which city, country to preach Krishna consciousness? New York. So, very simple question. That is New York. Prabhupada went to New York because New York was the most important city of the world. So Prabhupada thought that I should start the most important knowledge from the most important city of the world. So Prabhupada went to New York. So option C will be correct. How Gopal Chapel tried to defame Srivas Thakur? By forcing Srivas Thakur to eat meat? No. By spreading fake news about Srivas Thakur? By keeping black magic items in the backyard of Srivas Thakur's house. So option C will be correct. So by this past time we discussed that how Gopal Chapal, he was a devotee of Mother Durga but wanted to defame another devotee of Krishna by doing one kind of black magic. टोटका करके और लाल कपड़े में कुछ कुछ बांध के उनके घर के पीछे रख दिए तो डिफेम करने के लिए कि ये श्रीवास ठाकुर जो ढोंगी है ये कृष्णा का भक्त नहीं, ये दुर्गा का भक्त है, दिखाता अपने आप को कृष्णा का भक्त. So by seeing this act, Chaitanya Mahaprabhu became like fire, and as a result, consequently, Gopal Chapal developed leprosy, and he became a leper, and so much so that he was suffering very very badly, and his body was burning. People discarded him from the that village. He was living by the side of Ganges, and Chaitanya Mahaprabhu was also every day going to have the bath in the Ganges. So he would request Chaitanya Mahaprabhu, but Chaitanya Mahaprabhu did not heed to his instruction, his request. And Chaitanya Mahaprabhu said, "You have to suffer for millions of years because you offended us. Very dangerous to offend the Vaishnava, to criticize the Vaishnava." By this pastime we understood. Option C will be correct. किंग रघुगणा अपोलोजाइज टू whom? जड़ भरत. सो ये जड़ भरत का भी पास टाइम बहुत अच्छा था. ये सब सारे पास टाइम हमारे माइंड में मेमोरी में होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे फोरग्राउंड माइंड में होना चाहिए, जिससे कि हम इन सब ऑफेंसेस से बचें. अदरवाइज we become complacent and we left and right blaspheme everyone, and even to the point of criticizing blaspheming devotees also. That is very dangerous. So the fill in the blanks of life are like blazing fire, which forest fire which are not set by anyone. Perplexities of life, correct? So the perplexities of life, the perplexity, first option will be correct. Which of the following problem is made by us unnecessarily? Birth, death, disease, economic problem. So economic problem we have created unnecessarily. Otherwise, actually, Prabhupada says there is no problem in this world. There is only deficiency of Krishna consciousness, perfect management. Otherwise, there is no deficiency. We have created this economic problem. There is no, actually there is no problem. Because of mismanagement, these problems are coming. If people become devotee, then there will be no problem. Just like when we discussed about our Sone Ki Chidiya Bharat, Vedic culture, when it was being practiced, Lord Macaulay came to India, he saw people are so happy. So they are so rich, they are eating in the golden plates. Why? Because spiritual culture was being followed. Gurukul system was there, and students were being trained since beginning about spirituality. Just like today, students are being trained about how to enjoy, how to gratify senses since beginning. Parents are training their children that work hard and become successful, earn money, enjoy life. So today, since beginning, child is trained to gratify senses with bodily concept. But earlier, student was trained since beginning about soul concept. So that is the difference. So when we understand about the soul concept, then all the problems are automatically solved. No economic problem. So unnecessarily we have created these problems. So Prabhupada registered ISKCON officially in which year? 1966.
One complete year, 1965, Prabhupada went to America. One complete year he was traveling and wandering here and there from this apartment to that apartment. And it was a very, very difficult time for Prabhupada, complete 1 year. And then 1966, he registered ISKCON. What is the qualification of bona fide spiritual master? He belongs to high class family? No. He is Sanskrit scholar? No. He is in Ramsar? No. He is perfect in science of Krishna consciousness? Yes. So then we discussed that even a Chandal who is a dog eater, he also can become a spiritual master if he is a great devotee of Krishna. Just like in Mahabharata, a very typical example comes. Anybody remember who is that? What is that example? He is not of higher class, but he is a pure devotee, and Krishna favored him so much. Anybody remember that pastime? That person who is not a Brahmin, who is not a Kshatriya, who is not a Vaishya, but still Krishna favored him so much. I think unlimitedly he favored. Hare Krishna Prabhu. Who is that? Prabhupada. Tanisk. बोलो कौन थे? Hare Krishna Prabhu. हाँ Vidur. हाँ Vidur, correct answer. Vidur was Sudra, Dasi Putra, but still Krishna favored him. जब विदुर की वाइफ केले का छिलका दे रही थी कृष्णा को खाने के लिए, विदुर रोक दिए विदुरानी अपनी वाइफ को, लेकिन कृष्णा ने बोला मत रोको, शी इज परफेक्टली इन perfect devotional mood for the Lord. Just see. So Lord went. In fact, Duryodhan invited for Chappan Bhog to his palace, but Krishna did not accept that proposal. Krishna accepted the proposal of Vidura and went to eat the peel of banana. Why? So that by this pastime we understand that Krishna is captured by love, not by opulence. Your externals, no. So because Vidura was a perfect devotee, so he can be the spiritual master, not the Dronacharya. Dronacharya was a Brahmin, but he was not a great devotee of Krishna, so he cannot become a spiritual master. But Vidura, he can be spiritual, and in fact he was the spiritual master. And for your kind information, Vidura was none other than Yamraj. Yamraj incarnated as Vidura. There is a long pastime why Yamaraj had to appear as Dasi Putra in the form of Vidura. So, yeah, spiritual master can be from any caste, but provided he must be a well versed in Krishna consciousness. He should know all the signs of Krishna consciousness, God. Okay, so the next question is qualities of Prabhupada which makes him a bona fide spiritual master. Preaching Krishna consciousness in Western world single-handedly, correct. Always give quotes and references from scriptures, not only speak what Krishna spoke, yes. Master in the science of Krishna consciousness, correct. So all of the above. What was the name of ship through which Prabhupada traveled to America? Hare Krishna Prabhu, I guess Liberty fourth Mary was one, that name. Jaladuta. Jaladuta was the correct answer. Alright. Prabhupada's statement, I have no devotion, neither I have any knowledge, shows Prabhupada's lack of knowledge? No. Prabhupada's lack of devotion? No. His humbleness, which is a quality of pure devotee. So option C is correct. When a devotee becomes pure devotee, he feels more that I am not a devotee. And who is not a devotee, he feels more, I am a great devotee. He is puffed up. So this is a checkpoint. This is a test. If anybody says, I am a great man, I am a great devotee, I am a great devotee of Krishna, actually he is not a devotee, because this is another quality of a devotee, that if he is a great devotee, he will never show himself that I am a great devotee. In fact, he will say, I don't have devotion to Krishna. Just like Krishnadas Kaviraj Goswami, who wrote Chaitanya Charitamrita, he says, Puri se rakit hoite mui se logista, jagai madhai hoite mui se papista. So दो बहुत ही टिपिकल सिंफुल पर्सन हुए हैं जो जगाई और मधाई जिनका नाम था. उन्होंने चारों मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ, नशा, चारों को एकदम अनलिमिटेडली किया है बंगाल में, लेकिन इनको चैतन्य महाप्रभु ने डिलीवर कर दिया. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बड़े भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो जगाई मधाई हैं इनसे भी मैं पापी हूं, इनसे भी ज्यादा पापी हूं, मैं तो जो वर्म इन द स्टूल है उससे भी नीचा हूं मैं. लेकिन ऐसा नहीं है. वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज वेरी ग्रेट डिवोटी, एडवांस डिवोटी ऑफ कृष्ण.
Therefore, he is able to write Chaitanya Charitamrita, the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. But yes, he is feeling. So this is another great quality of a devotee. He will never claim himself as a great. But outside world, this is ulta. People boast themselves. They do self-aggrandizement. They will pose themselves as great man. They will show off and all kinds of activities they will do to establish themselves that I am smart, I am champion, I am great, I am this that. But devotee is completely ulta. So this is a spiritualist. Anyway, so these are the acha ek question aur hai. In which country and which year Prabhupada started Rath Yatra? In San Francisco in 1967. So option D is the correct. Now result we'll see later, because today I have to discuss many topics, because we are lacking. Second chapter is taking much time, and we have to finish this second chapter as soon as possible. So now I am going to discuss the second chapter. So I'll share the screen. All of you can be now very attentive and attentively hear each and every point. I am going to share the screen. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So I think it is visible to all of you. ये कोट वेल नोन कोट है, आप लोगों को सबको पता होगा, आइंस्टीन्स कोट. So आइंस्टीन बोलते हैं, we cannot solve the problem with the same thinking we used when we created them. So ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने फिर से इसको इंट्रोडक्शन में मैंने इसको डिस्कस किया था कि भगवद गीता कैसे कृष्णा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अर्जुन के. सो यहाँ पर ये सेम प्रिंसिपल को कृष्णा ने अप्लाई किया जो कि आइंस्टीन ने बोला. सो प्रिंसिपल क्या है, अगर आपने किसी प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, सपोज प्लेटफॉर्म ए, तो आप उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप उसी सेम प्लेटफॉर्म ए पे रहते हैं. यू हैव टू रेज योर प्लेटफॉर्म ऑफ थिंकिंग consciousness. So this is the principle on which Krishna actually acted in this Bhagavad Gita. So Arjuna is confused, bewildered, but he surrendered to Krishna, that Krishna, please instruct me what is best for me. So now Krishna starts speaking from verse number 11. So Krishna first of all chastised Arjuna. You speak like a wise man, but actually you are a fool. Because wise lament neither for the living nor for the dead. And you are lamenting because you are thinking in the bodily concept of life. You are thinking these people are your brother, sister, uncle, maternal uncle, your father, grandfather. You are thinking in terms of the body. Therefore, Krishna chastised Arjuna by saying him, you are a fool number one. And you are lamenting, you are a Sudra. Because Sudra laments for this body. If somebody dies, only Sudra laments. But a intelligent man, wise man who is in knowledge, he will never lament. And you are speaking such a learned words, but you are mourning for something which should not be lamented upon. So Krishna chastised in 11th verse. Then 12th verse, Krishna says that never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. This is very, very important instruction. कृष्णा बोलते हैं, तुमको क्या लगता है ये सब सीज हो जाएंगे? मैं भी सीज था, तुम भी सीज नहीं. We all exist eternally and will exist eternally. So यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन से कृष्णा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि मिसकॉन्सेप्शन उसको रिफ्यूट कर दिया, दैट इज मायावाद अंडरस्टैंडिंग. दिस मायावादीज दे से दैट हम सब लोग एक हैं, ब्रह्मन है. ये मायावादी एथीस्ट नहीं है जो माया में है. जनरली हम मायावादी मतलब जो माया में उनको सोचते नहीं. मायावादी ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट ही हैं, ये स्पिरिचुअलिस्ट ही हैं. लेकिन ये क्या बोलते हैं कि हम सब एक हैं, आप भी भगवान है, ये भी भगवान, हम सब भगवान है. अभी बॉडी अलग अलग है, ये बॉडी जब खत्म हो जाएगा तो हम सब मर्ज हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी.
हम सब मर्ज हो जाएंगे, सब एक हो जाएगा। तो एनालॉजी देते हैं घटाकाश पटाकाश। जैसे एक पॉट होता है, उसके अंदर स्काई स्पेस होता है और वो पॉट के बाहर भी स्पेस होता है। आप पॉट को ब्रेक कर दो, दोनों स्पेस मर्ज हो जाएंगे। सो ये एनालॉजी देते हैं और बोलते हैं कि उसी तरीके से बॉडी बॉडी ये सेपरेट कर रही है, हमारी आत्मा और जो सुपर सोल है वो दोनों मर्ज हो जाएंगे। अगर बॉडी हम खत्म कर दें तो सब एक हो जाएगा। बट दिस इज रिफ्यूटेड हियर बाय कृष्णा। ये एनालॉजी ही पूरी की पूरी गलत है, बिकॉज हम लोग मटके नहीं है कि हम फट जाएंगे आकाश मिल जाएगा। Correct? We are spirit soul, part and parcel of Krishna, and we belong to supreme spirit soul. So यहाँ कृष्णा बोलते हैं कि इटरनली हम पास्ट में भी इंडिविजुअल थे, अभी भी इंडिविजुअल हैं और फ्यूचर में भी इंडिविजुअल ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम कृष्णा में मर्ज हो जाएंगे, नहीं। ऐसा नहीं है कि कृष्णा और हम सब एक हैं, नहीं। ये मायावाद अंडरस्टैंडिंग है और ब्रह्मन अंडरस्टैंडिंग, जो बोलते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं और बोलते हैं हम सब भी निराकार हैं, सब निराकार हैं। जैसे एनर्जी है ना, सब एनर्जी मर्ज रहती है। आप 10 लाइट जलाओ, 10 लाइट की एनर्जी एक साथ मर्ज हो जाती है, करेक्ट? उसी तरीके से हम सब लोग एनर्जी मर्ज हो जाएंगे। बट यहाँ पर 2.12 में कृष्णा ने ये बहुत ही डेंजरस अंडरस्टैंडिंग को डिस्ट्रॉय किया। ये इंडिया में ये मेंटालिटी बहुत ज्यादा प्रिवेल्ड है। मेनी मेनी पीपल, 90% पॉपुलेशन इन इंडिया एंड फॉरेनर्स, फॉरेन में तो है ही, इंडिया में भी 90% पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड, दे आर इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज। सब सोचते हैं कि सब एनर्जी है। और 2 पॉइंट टेबल में आप सीधा सीधा देखे कृष्णा बोल रहे हैं कि नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू नॉर ऑल दीज किंग्स, नॉर इन द फ्यूचर शैल एनी ऑफ अस सीज। हम लोग सीज नहीं होंगे। So therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Lord Chaitanya has forbidden us to read commentation made by the Mayavadis. So ये जो मायावादीज की थ्योरी है, बुक्स है, कभी पढ़ना नहीं है और सुनना भी नहीं है। And he wants that one who takes to such an understanding of the Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. जो ये मायावादी अंडरस्टैंडिंग सुनने लगे, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, बक 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 करते रहते हैं, कुछ भी अपने मन से बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, बहुत फंटास्टिक आईआईटी से होंगे, लेकिन वो सब मायावाद, सब मायावाद। एट द एंड क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग में बहुत अच्छी नॉलेज देंगे, सब बताएंगे, लेकिन एंड में सब भसड़ कर देंगे। जैसे एक महाराज बहुत फेमस है आज के टाइम पे, हिंदी बोलते हैं और वो सब बोले नाम जप करो, नाम जप करो, सब नाम जप करो, लेकिन एंड में सब भसड़ कर देते। वो बोलते हैं आसाराम और राम दोनों एक हैं। आसाराम जेल में है तो क्या हुआ? कृष्ण भी तो जेल में थे। बताओ, ये इतना डेंजरस अंडरस्टैंडिंग है उनकी, लेकिन बहुत फेमस है, बहुत फैन फॉलोइंग है। लोग वृंदावन जाते हैं तो उनसे उनका दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं, लेकिन ही इज क्रिएटिंग पॉइजन इन द पीपल्स माइंड, बिकॉज स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बताते हैं, एंड में जाके वो पॉइजन डाल देते कि आशाराम राम सब सेम है। आप बोलेंगे मेरा मेरे फादर से अटैचमेंट है, हाँ तो आपके फादर वही पिता है, वही परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, उनकी सेवा कर। अरे कहीं नहीं लिखा है भगवद गीता में। यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं, अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम जिसको अपना समझ रहे हो ये सब कोई नहीं, ये बॉडी नहीं है, हम सोल हैं। और उनका अंडरस्टैंडिंग तो इस तरीके से, ये एग्जांपल मैंने दी, इस तरीके से मैक्सिमम लोग, पूरा इंडिया जो है ऐसे मायावादियों से भरा हुआ है। सो हमें बहुत ही अलर्ट रहना है, किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना। कृष्णा ने भगवद गीता में बोला है कि हम सब लोग सीज नहीं होते। सो चैतन्य महाप्रभु ने वार्न किया है कि हमें नहीं सुनना है ऐसे मायावादियों को, अदरवाइज मायावादी भाषा सुन ले होए सर्वनाश, हमारा सर्वनाश हो जाएगा। ओके, सो कंटिन्यूइंग, देन नेक्स्ट वर्स में कृष्णा एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। वो फेमस श्लोक है, ये आप सब लोगों को याद करना है। भगवत गीता के क्लास के दौरान मैंने बोला था आप लोगों को 108 श्लोक याद करना है। सो ये अब फर्स्ट चैप्टर में 2 श्लोक जो गीता महात्म्य का मैंने बोला था वो था, और ये तीसरा श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। इसमें सोल और बॉडी के बीच में डिफरेंस बताया गया, और नॉलेज यही है। नॉलेज मीन्स टू नो मैटर एंड स्पिरिट एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, दिस इज नॉलेज। अगर आपको केवल मैटर का नॉलेज, स्पिरिट का नॉलेज नहीं है, तो एक्चुअली में यू आर नॉट इन नॉलेज। रियल नॉलेज मीन्स नॉलेज ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। जैसे आज डॉक्टर्स हैं, वो पूरा मैटर के बारे में, बॉडी के बारे में पूरा, एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ पर, एमबीबीएस कर लिए हैं, एमडी की तैयारी कर रहे हैं, पीजी की, दिन रात पागलों की तरह लगे हुए मेहनत कर रहे हैं।
स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम नहीं, सोल के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मैटर के लिए इतना टाइम दे रहे हैं हम, 22 घंटे लगे हैं, 24 घंटे लगे हैं। सो एक्चुअली में हम नॉलेज में नहीं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं। नॉलेज मतलब मैटर का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, स्पिरिट का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और कंट्रोलर दोनों के कौन, ये भी। सो इस श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं कि जिस तरीके से एक बच्चा छोटा होता है, बेबी होता है, बेबी से बड़ा होता है, यंग होता है, यूथहुड होता है, फिर ओल्ड होता है, फिर डेथ हो जाती है, लेकिन इन सब स्टेजेस में द पर्सन इज सेम। Even though if you see here Amitabh Bachchan in the beginning when he was small child and when he was young star, now he is when he's old man. In all the three photos you can see a difference in the appearance, but actually person is one same. So who is that person? So this verse says that is they he know that soul is the person, body changing, soul is the one. So therefore it is concluded. And in our general terms also, when we talk, we don't say I head, I finger, or I body. How do we address? We say my head, my finger, my leg, my body. So actually you are differentiating your body with yourself. जैसे मेरा ये फोन, मैं क्या बोलता हूँ, माई फोन, आई डोंट से आई फोन। ये आई फोन नहीं है, माई फोन है। आईफोन दूसरा आप लोगों के पास होगा, तो ये आईफोन नहीं बोलते हैं, माई फोन। सो जैसे बोला माई फोन, तो फोन इज डिफरेंट फ्रॉम मी, करेक्ट। जैसे बोलते हैं मेरा घर, तो घर इज डिफरेंट फ्रॉम यू। यू आर द प्रोप्राइटर ऑफ द हाउस, यू आर नॉट द हाउस। सिमिलरली व्हेन वी से माई बॉडी, सो एक्चुअली वी आर द प्रोप्राइटर ऑफ द बॉडी। सो दिस इज कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग। सो by this common sense we can understand that I am not this body, which Krishna is saying in this particular verse. ये जो श्लोक बोल रहे हैं कृष्णा, ये बहुत ही लॉजिकल है। कोई भी लॉजिकल सेन सोबर पर्सन ये समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो चेंज होता जा रहा है, बट आई एम द सेम पर्सन। मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, जब मैं छोटा था तो मुझे टिंकू बोलते, जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पिंकू नहीं बोलेंगे, तब भी मेरा नाम टिंकू ही रहेगा। और जब बूढ़े हो जाएंगे तो शिंकू नहीं बोलेंगे, हम सेम टिंकू ही रहेंगे माँ की नजरों में, फादर की नजरों में। सो एक्सटर्नल चेंज हो गया, लेकिन बिकॉज पर्सन इज सेम, द सोल इज सेम, देयरफॉर वी आर द सेम पर्सन. So this understanding logical, this is very practical and logical also. And second is near death experience. This is also another proof that we are not this body, we are beyond the body. आप सब लोग near death experience के बारे में पढ़ना, कैसे इसमें बताया जाता है। बीबीसी न्यूज में आया था, वीडियोज अवेलेबल यूट्यूब पे। व्यक्ति का वो आईसीयू में है, एडमिट है, और उसका ऑपरेशन हो रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं काम कर रहा, और बट स्टिल बाद में उसका जब ऑपरेशन हो रहा है सब कुछ, वो व्यक्ति सब आके बता रहा है कि आपने कैसे कैसे मेरा मेडिकेशन किया। तो डॉक्टर्स और सरप्राइज, कैसे आपको पता? दैट मीन्स समथिंग इज देयर बियॉन्ड द बॉडी। एंड यान स्टीवेंसन थर्ड मिस हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया चलो थर्ड बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड एक्चुअली वो था ड्रीम एनालॉजी था, कि जैसे हम सोते हैं तो हम ड्रीम देखते हैं, तो जब ड्रीम आप देख रहे हैं तो आपकी बॉडी तो बेड पे लेटी हुई है, और आप ड्रीम देख रहे हैं, तो ड्रीम आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप राजा हैं, आपकी रानियां हैं बहुत सारी, आप पास पैसा है और जवानी है और क्या जिंदगानी, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, ड्रीम में राजा का पाठ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका ड्रीम टूटता है, फिर आप अरे कहाँ यार, कोई राजा वाजा नहीं है, मेरे असाइनमेंट पढ़ना है, एग्जाम आ रहा है, पढ़ेंगे नहीं फेल हो जाएंगे, घर वाले बैंड निकालेंगे, स्कूल में बेइज्जती होगी, कॉलेज में बेइज्जती होगी। सो ड्रीम में आप जब जाते हैं तो आप पूरा एक दूसरी दुनिया में होते हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर हम शरीर होते तो उसको कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? बॉडी तो सो रही है बेड पे, लेकिन वो ड्रीम देख रहे हो, वहां पर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा वाह ड्रीम। और आपको कभी कभी लगता है यार ड्रीम चलता रहे, है ना? सो यू एक्सपीरियंस दैट एंड दैट एक्सपीरियंस इज रियल। सो बोलते हैं जब आप ड्रीम में हैं, सपने में हैं आप, सपना सपना नहीं है। जब सपने से बाहर आते हैं तब सपना सपना होता है। सपने में तो सपना हकीकत है, सपना सपना तब होता है जब सपने से बाहर है। तो क्या सपना है, क्या हकीकत है? सपने से जब आप बाहर आते हैं तो ये हकीकत लगता है, सपना सपना हो जाता है। जब सपने में जाते हैं तो सपना हकीकत लगता है, और ये सपना हो जाता है, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो सपना हकीकत है, ये हकीकत है, सपना सपना या ये सपना, क्या सपना?
So this Bhagavad Gita says both are dream actually. Or dream मतलब temporary. सपना means anything which is temporary, that is called dream. So ये भी body, ये भी life temporary है, जैसे वो सपना टेम्परेरी है. सपना 1 घंटे का था, आपका बॉडी ये लाइफ जो हम जी रहे हैं 100 साल का हो सकता है ज्यादा से, बट दोनों क्या है, टेम्परेरी है. जैसे सपना टूटा, दूसरी बार आप फिर सोने की कोशिश करें, यार वही सपना आ जाए, वो जो राजा में था, वो मेरी रानी सुंदर लड़की, वो सपना फिर से आ जाए, कभी नहीं आएगा. अब दूसरे सपने हो सकता है कि आप कोई शेर दौड़ा रहा, भाग रहे हो और आप अपने जीवन बचा रहे हैं. तो जैसे एक सपना टूटा, दूसरे सपने में जाते हैं, तीसरे सपने में जाते हैं, वैसे ये शरीर, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम ये सपने में है, ये सपना टूटेगा, ये जब डेथ होगा तो दूसरे हम सपने में चले जाएंगे, तीसरे सपने, और हर सपने में आपको एक फैमिली मिलेगी, वहां पर सब होगा, बेटे होंगे, बच्चे होंगे, बट ये सब सपना है. So actually we understand by this dream analogy, हम सब लोग ड्रीम देखते हैं. जस्ट एक सेंस हमें डेवलप करना है, हमें सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है कि यार वो सपना कौन देखा, बॉडी तो नहीं देखते तो कौन देखा, spirit soul, that soul was there who was seeing the body, who is seeing the soul, or sorry, the dream. So we are not this body. So this dream analogy is another very nice, wonderful understanding to understand that how we are not this body. And fourth one is Ian Stevenson. Ian Stevenson was sponsored by Xerox process owner. What was the name? Chester Carlson. Chester Carlson is the owner of Xerox process, जो photocopy होती है उसके owner. He sponsored Ian Stevenson to do the research work that reincarnation is fake. Reincarnation is not the correct understanding. But Ian Stevenson started to disprove this reincarnation Indian Vedic understanding, but he happened to prove reincarnation and he discovered more than thousands of cases. पैमेला रॉबिन्सन का एक केस यूट्यूब में आप सर्च करना, एक लड़का था, वो पिछले जन्म में पैमेला रॉबिन्सन उसका नाम तो लड़की था, और वो आई थिंक न्यूयॉर्क और समवेयर बिल्डिंग में आग लगने से वो जंप करके सुसाइड कर ली थी, और लेडी उसका नाम था पैमेला रॉबिन्सन. नेक्स्ट लाइफ शी बिकेम अ बॉय, और अपने मदर का जब भी देखता था वो बोलता था मैं भी ऐसी झुमका पहनता था, मैं भी ऐसे डेकोरेट करता था. तो माँ समझ नहीं पाती थी क्या क्या बड़बड़ा कर रहा था. तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने छोटा बच्चा था उससे पूछने लगा, तो सब सारा डिटेल बताया कि इन लास्ट लाइफ आई वाज पैमेला रॉबिन्सन एंड आई वाज 24 इयर्स ओल्ड एंड होटल में आग लगने से मैं मर गई, सुसाइड कर ली. तो इस तरीके से पूरा उसने रिवील किया, और जब डॉक्टर गए, फैमिली गई, तो चेक किया, पता लगा सही, तो ऐसे बात करेक्ट. तो इस तरीके से ने बहुत सारे केसेस डिस्कवर किए हैं जिसमें छोटा बच्चा अपने ही सुसाइड, अपने ही मर्डर को जे पुलिस के सामने बता रहा है कि ही हैज मर्डर्ड, और वो निशान भी दिखाता है कि इसने मुझे इस वेपन से मेरे सर पे मारा और मर्डर कर दिया मेरा, और इसने ये वेपन कहाँ छुपाया वो भी दिखा रहा है खुद. सो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे केसेस उजागर किए हैं, आप पढ़ सकते हैं. सो नाउ वी अंडरस्टूड लॉजिकली and scientifically correct. So all the possible ways we understood that, and scripturally also, scripturally, scientifically, and sober understanding, sober mind, sane common sense also. When we apply all these possibilities, by all these possibilities, we understood that how we are not possible, and that's what is. So there is a very nice story which comes there was one businessman named he had four wives. So he loved fourth wife most. He adorned her with अच्छे ज्वेलरी देता था, बहुत केयर करता था, and he gave her the fourth wife. इंस्टाग्राम से उसको मैरी किया, फॉरेनर होगी, बहुत सुंदर थी. थर्ड वाइफ बिजनेसमैन था, वो बहुत सुंदर थी, उसको भी बहुत प्यार करता था, और वाइफ उसको गर्व था, और वर्क प्लेस में मिली जहाँ काम करता था, बिजनेसमैन जहाँ बिजनेस करता था, वहाँ पार्टनरशिप में थी. पार्टनरशिप बहुत वहाँ था. थर्ड वाइफ थी, बहुत सुंदर थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी,
बिजनेस में थी तो उस पे बहुत घमंड था, कहीं भी जाता था उसको लेकर जाता था और बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती थी तो प्राउड था, कहीं भी जाता था बाहर पार्टी शादी में लोग थर्ड वाइफ को लेकर जाता था। बट उसको हमेशा डर था यार ये मेरी वाइफ जो है कहीं उसको साथ भाग ना जाए, सो ही वाज ऑलवेज फियरफुल। सेकंड वाइफ वो जो थी सेकंड वाइफ उससे भी बहुत प्यार करता था वो, लेकिन और उसके साथ जब भी प्रॉब्लम में आता था उसके साथ शेयर करता था, डिस्कस करता था और उसको कंसोल करती थी, पैसिफाई करती थी। एंड जब भी वो बिजनेसमैन था तो जब बिजनेस में लॉस होगा या कुछ भी होता था तो डिस्कस करता था। सेकंड वाइफ बहुत अच्छे से काउंसलिंग वगैरह करती थी, वेरी एक्सपर्ट काउंसलर, तो साथ टाइम स्पेंड करती थी और वो हेल्प करती थी मुझे बिजनेस में डिफरेंट टाइम्स में। और पहली वाइफ जो थी उसको तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, वो इंडियन वाइफ होगी, सीधा साधा सीधी सादी फैमिली से होगी, बहुत अच्छी थी, ज्यादा मॉडल नहीं होगी, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं चलाती होगी, साड़ी पहनती होगी, मेकअप नहीं करती होगी, तो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, तो उसको ध्यान नहीं देता था। दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बहुत ज्यादा ध्यान देता था और ज्यादा तीसरी और चौथी पे ज्यादा देता था। दूसरी को भी कम देता था, पहली को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था, बट पहली जो बहुत चेस्ट एंड ओबीडिएंट थी और शी वुड सर्व हिम with the best capacity, कुकिंग करती थी, खाना बनाती खिलाती थी उसको, लेकिन फिर भी वो उसको भाव नहीं देता। So that was the story of this businessman who was having four wives. So now what happened? One day this businessman, as we all know, we all have to experience that phase. The last day will come in our life, and then we have to say goodbye to all our friends and relatives and everything. So similarly, this businessman, he was about to die. He fell ill, and he was now knowing that I'm going to die soon. So he thought of his luxurious life. I'm having so many wives, I'm so luxury, but now I'm suffering alone. So he thought of asking from his wives that I'm going alone, I'm going to die, and I will go alone, and I'll have to suffer. So he thought that let me ask from my wives whether any of them will accompany me in this journey, because I have loved them so much. So this dying man who was about to die, because he loved the fourth wife the most, so he asked the fourth wife, I loved you the most, and I endowed you the finest clothing, jewelries, everything, all the care and concern. Now I'm going to die. Will you accompany me? So ये जो इंस्टाग्राम वाली लड़की जो बहुत स्टाइल मारती थी, जिससे उसको बहुत प्यार था, क्या वो बोलती है नो वे, और इंस्टाग्राम से तुरंत उसको क्या कर दी, अनफॉलो कर दी। बोली कि तुम्हारा ड्यूटी था मेरी सेवा करना, मुझे सप्लाई करना सारी चीजें। नाउ यू आर गोइंग टू डाई, व्हाई शुड आई कम बिहाइंड यू? यू गो अलोन, आई विल नॉट कम। तो जैसे ही उसने अपनी वाइफ से ऐसे सुना, एकदम शार्प piercing voice like arrows, so his heart was broken, he became very sad. तो इसको सोचा कि चलो चौथी वाइफ ने तो डिस्कार्ड कर दिया, तीसरी वाइफ सोचते हैं, तीसरी वाइफ को बुलाता है। तो तीसरी वाइफ को भी उसने बहुत प्यार किया था, उसको अपने साथ ले जाता था, जहाँ भी जाता था बहुत प्राउड था। लेकिन तीसरी वाइफ क्या बोलती है, जब ये बोला मैं मरने वाला हूँ मेरे साथ चलोगी, तो तीसरी वाइफ क्या बोलती है, ओ this life is so nice, this world is so nice, why should I accompany you? You go alone, I will remarry and enjoy. I'll remarry another businessman, a rich man, and I'll enjoy my life. Why should I come with you? So ये बोल के वो तीसरी वाइफ भी चली जाती है। और जैसे ही, बिकॉज ये दोनों वाइफ्स को उसने बहुत ज्यादा केयर एंड लव दिया था, और जैसे ही ये बिजनेसमैन सुनता है, रिच मैन, उसका हार्ट जो है वो सिंक हो जाता है। और क्योंकि मरते समय क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 107 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, प्रभुपाद बताते हैं, और अचानक से फिर ठंडा हो जाएगा आपकी बॉडी जब आप मरने वाले होते हैं।
107 डिग्री टेम्परेचर होगा और अचानक ठंडा हो जाएगा। तो अभी ये 2 वाइफ्स ने इसके टेम्परेचर को हाई कर दिया, अब ठंडा होने वाला है क्योंकि मरने वाला है। सो दूसरी वाइफ से आधे मन से पूछता है, क्योंकि जिसको उसने बहुत ज्यादा टाइम और लव अफेक्शन शेयर किया था वो तो सब उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरी वाइफ से पूछता है आधे मन से, शायद पता नहीं हो सकता पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो दूसरी वाइफ ने बोला कि ठीक है, मैं चलूंगी आपके ग्रेवयार्ड तक चलूंगी बस, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हैं, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे मेंटेन किया है, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके ग्रेवयार्ड तक जाऊं, लेकिन उसके आगे नहीं जाऊं। उसके आगे का सफर तो आपको अकेले तय करना है। और जैसे ही बिजनेसमैन सुना रिच मैन, ही वाज डेवास्टेटेड। तो अब वो पहली वाइफ को तो बुलाया ही नहीं, क्योंकि पहली वाइफ को उसने क्या किया था, कुछ नहीं दिया, उसने भाव ही नहीं दिया था। वो लीन एंड थीन हो गई थी, एज इफ शी वाज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। बट अचानक से उसने एक आवाज सुना। क्या आवाज सुना? ओ माय मास्टर, आई विल कम विद यू, I will come with you, I will not leave you, anywhere you go I will follow you, no matter where you go। और जैसे ही वो सुना तो देखा तो कौन थी वो? उसकी पहली वाइफ थी। और वो जब जैसे ही सुना तो रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आने लग गए कि मेरी पहली वाइफ, जिसको मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, कहीं नहीं लेके गया, हमेशा रिजेक्ट किया, लेकिन कितना ओबीडियंट है, कितना चेस्ट है। क्योंकि ये इंडियन वैदिक वाइफ थी ना, वैदिक कल्चर वाली। पहले 3 तो मॉडर्न थी, इंस्टाग्राम वाली थी, व्हाट्सएप वाली थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सब। सो देन उसको रियलाइज होता है कि यार मुझे इस वाइफ को ज्यादा टाइम एनर्जी और सर्व करना चाहिए था, बट मैंने कुछ नहीं किया, आई वेस्टेड माई लाइफ। सो फाइनली दैट बिजनेसमैन डाइज एंड दैट फर्स्ट वाइफ accompanies the businessman, rich man. So now, what is the moral of this story? Why am I sharing this story? To pass the time, और कुछ आप लोगों का मन को बहलाने के लिए? वैसे ही व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हम लोग अपना मन बहलाते रहते हैं, तो ये क्लास में भी क्या मैं आपका मन बहला रहा हूँ क्या? वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग डिस्कसिंग दिस स्टोरी? बिकॉज देयर इज अ डीप लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी। So Prabhupada says actually we all have 4 wives in our lives. We all are a businessman. We all are having 4 wives. What are those 4 wives? The 4th wife is our body. 4th wife जिसको हम बहुत ज्यादा केयर, ज्वेलरीज, ड्रेस, नाइस अपार्टमेंट, बिल्डिंग, ये सब लग्जरी देते हैं, ये कौन है? हमारी बॉडी है। और no matter how much time and effort we lavishly invest in maintaining our body, this body will leave us behind. This body will not continue with us. But unfortunately, you see, 24 hours nahi, 30 hours we give time to only body, and when we die this body will not go with us. And who is the 3rd wife? 3rd wife is our possession, car, bangla, गाड़ी, ये सब, बिल्डिंग, अपार्टमेंट्स, पोजीशन, बैंक बैलेंस, ये सब 3rd वाइफ। स्टेटस एंड वेल्थ, व्हेन वी डाई दे ऑल गो टू अदर्स। तीसरी वाइफ ने क्या बोला था? तुम मरो, मैं तो किसी और शादी कर लूंगी, मैं धनी आदमी के पास चली जाऊंगी, फिर शादी कर लूंगी। प्रोस्टिट्यूट थी साइड। तो ये जो पोजीशन, बैंक बैलेंस, दे आर लाइक प्रोस्टिट्यूट, मींस दे आर नॉट योर्स। डोंट थिंक दैट दे आर योर्स। टुडे it is yours, tomorrow it will be somebody else's. So but we have so much proud upon all these things, but we should be humble enough to realize this when we are blessed by transcendental knowledge, by when we serve Krishna, when we chant Hare Krishna, when we read Bhagavad Gita, when we associate with the devotees, then we can realize all these things. Otherwise we remain in illusion, thinking that my body is my everything, my possession is everything. But when we leave, all these things will be left behind. And second wife कौन है? हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सेकेंड वाइफ ने क्या बोला था? चलो तुम्हारे ग्रेवयार्ड तक तो चल लूंगी मैं। तो वो कौन है? हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा आपके ग्रेव तक जा सकते हैं बस। आपका जब डिफिकल्ट टाइम है तो आपको पैसिफाई, कंसोल करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। आजकल के फ्रेंड्स तो वो भी नहीं करते। आजकल तो इतना ट्रस्ट इशूज है कि मजे लेते हैं फ्रेंड्स। बट एनीवे, अगर रियल फ्रेंड, जेन्युइन फ्रेंड भी है तो कहाँ तक जा सकता है? ग्रेवयार्ड तक जा सकता है।
बट द फर्स्ट वाइफ जो हमारी है रियल, उस पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसको हम देख नहीं पाते, we can't see. It is often neglected in our pursuit of material wealth and sensual pleasure. Sense gratification and pursuit of wealth में हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, और यही एक चीज है जो हमें फॉलो करती है, और इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू कल्टीवेट एंड स्ट्रेंथन। वो क्या है? rather than to wait until we are on our deathbed to regret and lament. हमें ये रियलाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है कि हमारे साथ कौन जाए, कौन है वो, एंड दैट इज सोल। वो क्या है? soul. So we are actually the soul, but just alas, how sad it is, we don't have time for the soul. We don't have time for the soul. How devastating situation it is, how प्रभु sad जी it is. Alas, we don't have time for ourselves. We are the soul, but we don't have time. प्रभु जी So actually, when युधिष्ठिर महाराज और पांडव को जब वनवास में थे, तो युधिष्ठिर का बहुत बड़ा टेस्ट हुआ था, यक्ष ने लिया था। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, यक्ष ने टेस्ट लिया था युधिष्ठिर का, और युधिष्ठिर के चारों भाई का डेथ हो गया था। युधिष्ठिर वाज सरप्राइज्ड, ये कौन व्यक्ति इतना पावरफुल जो मेरे 4 पावरफुल ब्रदर्स को, भीम को भी, अर्जुन को, सबको मार दिया, कौन है वो? सो बाद में पता चलता है वो यक्ष थे। तो यक्ष टेस्ट लेते हैं युधिष्ठिर का। सो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किया। सो एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड? सो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थावरा इच्छन्ति किमाश्चर्य वदतः परम। युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं? अहनी अहनी भूतानि, एवरी डे people are going to यमालयम, they are dying every day. यमालय means यमलोकपुरी जा रहे हैं, people are dying. We are seeing गुप्ता जी मर गए, शर्मा जी मर गए, ये मर गए, वो मर गए, पड़ोसी सब देख रहे हैं हम, but we think I will never die, I am eternal. करेक्ट? हमारे यही अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए हम रेकलेस होते हैं। We recklessly do everything, we don't bother, even though we are seeing that every day people are dying. आप देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, चैनल में देखिए, कुछ न कुछ बैड न्यूज आते ही रहते। सो युधिष्ठिर महाराज से दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। सो एनीवे, बट वी शुड बी नाउ इंटेलिजेंट इनफ, ऑल ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास, सो वी शुड नाउ रियलाइज दैट हमें शरीर को, चलो फिजिकल जिम करें, लेकिन स्पिरिचुअल जिम भी तो करें। आजकल जिम का बहुत बड़ा कल्चर चल रहा है, सब जिम जा रहे हैं, बॉडी को बहुत अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अट्रैक्टिव बॉडी को जला के राख कर दिया जाएगा। ठीक है, मेंटेन करना बहुत अच्छा है, लेकिन नॉट फॉरगेटिंग द रियल सेल्फ, सोल। तो स्पिरिचुअल जिम भी करो ना, क्या प्रॉब्लम है? स्पिरिचुअल जिम भी करो, जैसे फिजिकल जिम कर रहे हो, स्पिरिचुअल जिम भी करो। तो डेली स्पिरिचुअल जिम भी करना क्या है? क्लास अटेंड करना है, चैंटिंग करना है, भगवत गीता पढ़ना है। स्पिरिचुअल जिम है, आपका सोल नरिश होगा, वो उसका मसल्स बनेगा, सोल नरिश होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करेक्ट? जैसे हम जिम करते हैं, क्यों? ये डिजीज ना हो, डिजीज कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी बढ़े, उसी तरीके से हमें सोल का भी जिम करना है, सोल स्ट्रेंथेंड। प्रभु जी नेक्स्ट वर्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग कृष्णा देते हैं अर्जुन को, कि अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और मैंने आपको बहुत लॉजिकली बहुत सारे और अंडरस्टैंडिंग से समझाया कि कैसे हम शरीर नहीं। अर्जुन को एक बार एक श्लोक बोल दिया, अर्जुन समझ गए, क्योंकि वो वैदिक कल्चर कृष्णा के डिसाइपल थे। हम लोग क्या सिचुएशन, एक बार बोलते हैं भगवत गीता, हम हमारे लोगों के माइंड में अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता माइथोलॉजी, ये तो कहने की बात है, ये सब बकवास। तो इसलिए बाकी सारे अंडरस्टैंडिंग, स्टोरी और यान स्टीवेंसन और ये सारी चीजें हमने आपको समझाई, जिससे कि आप लॉजिकली कन्विंस्ड हो, और आप जब बाहर प्रीच करें, जब आप जब कर रहे हैं, आपके फ्रेंड बोले अरे क्या जब कर रहे हैं, तो आप उसको भी समझा सके कि बेटा हम शरीर नहीं आत्मा है, थोड़ा आत्मा के लिए भी ध्यान दे दो, चैंटिंग कर लो, नहीं मर जाओगे, शरीर जल जाएगी, राख बन जाएगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस, ये नंबर, बिजनेस सब रह जाएंगे यहीं पर।
तो आप जिससे आप अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस कर सकते हैं। सो ये अंडरस्टैंडिंग इसलिए मैंने आपको दिया। आप हो सकता है कन्विंस्ड हो सकता है आपको नॉलेज हो, लेकिन आपके अपने फ्रेंड्स को भी कैसे कन्विंस करना है, आपके रिलेटिव्स को, आपके नियर एंड डियर वंस को भी कैसे कन्विंस करना है, इसके लिए हमने आपको समझाया। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हमेशा होनी चाहिए व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। Okay, then continuing, this is another important verse which Krishna says, Matra sparshaastu kaunteya sitoshna sukha dukkha agama paino nityastam pratikshvastu bharata। जिस तरीके सर्दी गर्मी बरसात आती है और चली जाती है, उसी तरीके सुख दुख आएंगे चले जाएंगे। ट्राई टू लर्न टू टॉलरेट। तो कृष्णा ने बोला अर्जुन को, दिस टू शैल पास अर्जुन। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था, बहुत दुखी था और वो परेशान था। उसने एक बहुत वाइज मैन, लर्नेड मैन से पूछा कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, बताओ मैं कैसे सुखी हो जाऊं तुरंत। तो वो जो वाइज मैन था उसने क्या हुआ, एक रिंग दिया। उस रिंग में क्या लिखा था, दिस टू शैल पास। उसमें उसने इंस्क्राइब कर रखा था दिस टू शैल पास, और राजा को दिया। राजा बोला, राजा आप जब दुखी हैं तो ये आप पढ़ लेना, रिंग में जो लिखा हुआ, आप सुखी खुश हो जाएंगे। कि दुख कितने समय तक रहेगा, पास हो जाएगा। जैसे अभी गर्मी 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या करें, मर जाएं? नहीं, ये गर्मी चली जाएगी, ठंडी बारिश आ जाएगा, फिर ठंडी आ जाएगी। फिर ठंडी में आप रजाई लेके बैठे रहेंगे, अरे ठंडी चली जाए, गर्मी आए, गर्मी। अब गर्मी आई है तो आप गर्मी को गाली दे रहे हैं, अरे गर्मी चली जाए। तो ये सीजनल चेंजेस हैं, जो आएंगे चले जाएंगे। उसी तरीके सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये आएंगे और चले जाएंगे। कृष्णा यहाँ पर बोल रहे हैं टॉलरेट अर्जुन, जस्ट लर्न टू टॉलरेट। सो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं, टॉलरेंस। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टॉलरेंस नहीं है। हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। हाँ, सुसाइड रेट कितना ज्यादा है। कोरोना में जितने लोग सुसाइड से, कोरोना से नहीं मरे, उतने लोग सुसाइड से मर गए। आईआईटी में सुसाइड्स हो रहे हैं, मेडिकल में सुसाइड्स हो रहे हैं। एक स्टूडेंट था, अनुराग नाम था, वो एम्स में उसने बहुत अच्छे रैंक, टॉप में उसने क्वालिफाई किया। आईआईटी में उसने टॉप 30 रैंक में क्वालिफाई किया। एम्स का डॉक्टर बन गया। 24 इयर्स एज था उसका, बहुत इंटेलिजेंट था, ब्राइट था, लेकिन सुसाइड कर लिया। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको भगवत गीता का अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि दुख आएंगे चले जाएंगे, सुख भी आएंगे चले जाएंगे। तो सुख में हमें प्राउड नहीं होना, पफ्ड अप नहीं होना, दुख में हमें दुखी नहीं होना। हमें लर्न करना, टॉलरेट करना। ये तभी होगा जब हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल होगा। सोल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सोल को कैसे समझें? सोल तो दिखता नहीं है, तो ये सोल क्या है? तो प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जिस तरीके से आप बॉडी में इंजेक्शन लगाते हैं तो मेडिसिन पूरे बॉडी में फैल जाती है। दूसरा एनालॉजी देते हैं, जिस तरीके सूरज एक जगह है और पूरे ब्रह्मांड को रेडिएट कर देता है, उसी तरीके से सोल आपके हार्ट में है। कहाँ पर है ये? हार्ट में, और आपके पूरे बॉडी में परवेडेड है थ्रू कॉन्शियसनेस। जैसे मैं आप अपने, मान लो आप चल रहे हो और आप बैठे हो और कोई चींटी आके काट देती है आप, तो आप इवन दो क्लास अटेंड कर रहे हो, चींटी काटती तो आपको तुरंत फील हो जाता है, बिकॉज यू आर कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी। सो ये आत्मा, आत्मा हार्ट में है और उसका पूरा इफेक्ट पूरे बॉडी में फैला हुआ है। जिस तरीके से सूरज का इफेक्ट पूरे ब्रह्मांड में है, उसी तरीके से सोल रेडिएट्स कॉन्शियसनेस एंड मेंटेन्स द एंटायर बॉडी। फिर कृष्णा बोलते हैं कि सुख और दुख में हमें स्टडी रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना। और बहुत इंपॉर्टेंट लोग बोलते हैं कृष्णा, ये बॉडी जो है टेम्परेरी है और सोल इटर्नल है। सो हमें जो बोलते हैं राम नाम सत्य है और सब असत ही है, केवल राम नाम सत्य है, वही यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं। Those who have CS of truth, they have said that this body will perish and soul will not perish. So removal of ignorance involves the reestablishment of the eternal relationship between the worshipper and worshipable. So हमें ये ignorance को remove करना है। हम अभी ignorance में हैं, हम समझते हैं शरीर है, तो हमें ignorance को हटाना है और हमारा रिलेशनशिप, जो आत्मा, हम लोग आत्मा है, हमारा कृष्णा से एक रिलेशनशिप है, उसको रीस्टैब्लिश करना है, और देन वी कैन एंजॉय आवर लाइफ। फिर कृष्णा बताते हैं नेक्स्ट वर्स में, और प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, ये बॉडी जो है, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इस बॉडी में। कैसे जन्म लेती है ये? इट टेक्स बर्थ, इट ग्रोज, इट मेंटेन्स, इट produces byproducts, then finally dwindles and vanishes. So these are the 6 transformation. कौन कौन से? पहला क्या है? takes birth, दूसरा grows, तीसरा maintains itself, चौथा produces byproducts, देखो चौथे फोटो में देखो, पांचवा dwindles, बुढ़ापा आने लगता है,
एंड फाइनली छठवां vanishes. So these are the 6 transformation of the body. So body जो है टेम्परेरी है, असत है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रही है, लेकिन आत्मा इटर्नल है, आत्मा कभी चेंज नहीं होती है, आत्मा सच्चिदानंद है और कभी न तो जन्म हुआ है न कभी मरेगा, ये इटर्नल है और ये प्राइमीवल है। कृष्णा जैसे इटर्नल है वैसे आत्मा भी इटर्नल है। कृष्णा सच्चिदानंद है और हम आत्मा है, कृष्णा का स्वरूप, कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल, इसलिए हम भी सच्चिदानंद है। Therefore we are always hankering for the pleasure. So एक क्वेश्चन आता है कि ये सोल को कैसे समझें, हम कैसे देखें। So जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल लेकर, अगर आपको पूछा जाए कि इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, दिखाओ मुझे, है ना, नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, दिखाओ मुझे, तो आप कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे उसको? मोबाइल लेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, क्रोम चलाएंगे, अगर चल रहा है तो आप बताएं देखो इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, वाईफाई यहाँ पर टावर है, नेटवर्क है। सो जो चीज आपको दिखती नहीं हो कैसे आप समझते हैं? सिम्टम्स। उसी तरीके से आत्मा दिखती नहीं है तो कैसे समझे हम? कॉन्शियसनेस से। जब तक आपके बॉडी में कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब क्या है? आपके बॉडी में सोल है। अगर कॉन्शियसनेस चली गई, दैट मीन्स सोल हैज लेफ्ट द बॉडी। सो कृष्णा एक एग्जांपल लेके बताते हैं, जिस तरीके से हम जो है एक पुराना कपड़े को छोड़कर नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरीके से the same way this soul leaves useless body and gets new ones. So therefore a sober person does not lament for the body because he understands soul leaves this useless body, now it will take another new fresh body. तो सोल को कैसे देखें हम? सोल को हम देख नहीं सकते क्योंकि सोल का जो डायमेंशन है 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है। ये उपनिषद में आता है कि जो सोल है उसका डायमेंशन क्या है? 1/10,000 part of the tip of the hair. Therefore, soul is indestructible. It cannot be burned by fire or moistened by wind, or moistened by water, nor withered by the wind. Soul is indestructible. No. So therefore, last verse Krishna says, that is amazing verse. Krishna says this soul is amazing. So this is the last slide of today's class. Soul is amazing. And the person who has the ability to see the soul, that person is also amazing. So जैसे मैंने बताया सोल कैसे देखना है? सिम्टम से, कॉन्शियसनेस से। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब सोल है हमारे अंदर। बात नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियस हो गए, इसमें तो सोल नहीं है। यही तो डिफरेंस है डेड बॉडी में, लिविंग बॉडी में, करेक्ट? उसमें कॉन्शियसनेस नहीं, हमारे में कॉन्शियसनेस। The fact that someone can see the soul, that fact is amazing. And people hear about the soul and cannot understand at all, that is also amazing. So कुछ लोग समझने सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते, ये भी amazing है. So this is amazing verse. So with this today's discussion जो सोल के ऊपर था, होल एंड सोल, पूरा सोल पे था, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग लिए हैं और हमें अब कन्विंस हो जाना चाहिए कि हम लोग सोल हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर पे हम टाइम तो दे रहे हैं लेकिन हमें सोल पे भी टाइम देना चाहिए। सो आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। एनीवे, आपका कोई क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं। आर के ठाकुर जो भी है आप पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग एंड करेंगे। कुछ किसी को क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, प्रभु जी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हम अटैच सोल से नहीं है, बॉडी से हैं? क्योंकि हम किसी अगर अटैच होते हैं तो हम तो प्योर हार्टेडली अटैच हो जाते हैं, तो हमें तो ये लगता है कि हम पूरे उस इंसान से अटैच हो। हमें कैसे पता लगता है कि हम सोल से अटैच नहीं है या सोल से अटैच्ड हैं? अगर आप लैमेंट कर रहे हैं, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस में परेशान हैं, तो इसका मतलब आप बॉडी से अटैच्ड हैं। सिम्टम्स आपको पता, सिम्टम्स पता चलेगा कि आप सोल से अटैच्ड है कि बॉडी से। अगर आप परेशान हो रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है वो चला गया, बिछड़ गया, या आप रिलेशन से ब्रेक हो गया और आप क्या है, आप परेशान हो रहे हैं, इसका मतलब आप बॉडी से अटैच है, सोल से अटैच नहीं। सोल से अगर आप अटैच होंगे ना, तो आप चाहे आपसे व्यक्ति बात करे या नहीं करे, आप हमेशा उसके फेवर में, बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट सोल बिलोंग्स टू कृष्णा एंड सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो वी शुड नेवर एनवी कृष्णा। क्योंकि जैसे अगर कोई फादर है वो अपने बेटे के साथ आ रहा है और आप फादर को तो अच्छा हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो, बेटे को मार रहे हो, तो फादर खुश होगा? नहीं। उसी तरीके से
हम सब लोग कृष्णा के बच्चे हैं। तो अगर आप कोई व्यक्ति आपसे बिछड़ गया, दूर हो गया या कुछ कर दिया आपके साथ, अच्छा नहीं किया, बुरा कर दिया, और आपके अंदर एनवियस फीलिंग आ रही है, जेलसी, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी आ रहा है, इसका मतलब आपको, आप बॉडली कॉन्सेप्ट में हो, आप सोल कॉन्सेप्ट में। सोल कॉन्सेप्ट में होंगे तो आप समझेंगे कि पहली बात तो आप समझेंगे दिस इज बिकॉज ऑफ माई ओन मिस डूइंग, माई ओन कर्मा। और दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या, एनीवे कृष्णा, एवरीवन is Krishna's son. I'm also Krishna's son. She or he is also Krishna's son. So my brother and sister. So why should I get disturbed or have ill intention or feeling about him or her? So ये सारी फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है, इसका मतलब बॉडीली अटैचमेंट है। अदरवाइज सोल अटैचमेंट इज वेरी क्लियर, वेरी प्योर। आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। सोल से अगर आप अटैच हैं, जैसे एक आपके दादाजी हैं, वो चले गए, मर गए, और आप दुखी हैं, इसका मतलब बॉडी से अटैच थे। अगर आप सोल से अटैच हैं तो आप दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सोल अभी भी इटर्नल है। आपको पता है सोल इटर्नल है, वो अपना न्यू अपनी जर्नी में कंटिन्यू किए, नई नई बॉडी मिलेगी उनको, नया डेस्टिनेशन मिलेगा। सो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो ये प्रूफ है आपको बताने के लिए कि हाँ भाई आप सोल से अटैच हैं, बॉडी से अटैच हैं। अच्छा, मैंने आप आज का क्विज का लिंक शेयर किया है, सो आप लोग अटेंड कर सकते हैं क्विज को और अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कितना समझ में आया आप। हाँ, नेक्स्ट तो समझ में आया मोहित? हाँ जी प्रभु जी, मतलब सब कुछ कृष्णा को बिलोंग करता है, हमारा हाँ ओनरशिप किसी भी चीज पे नहीं है। हाँ, हमारी कोई ओनरशिप नहीं, हमारी ये बॉडी खुद की नहीं है, हम ये बॉडी भी हमारी नहीं है। हमने वो स्टोरी हम्म। समझा ना कि कैसे बॉडी हमें सबसे पहले धोखा देती है। और हम सबसे किसी की पहले लाइफ को हम किसी की लाइफ को फिक्स भी नहीं कर सकते, अब जो हो रहा है होना देना चाहिए। हाँ, कर्मा फिक्स एंड डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट आएगा फ्यूचर में भी और बाद में भी। हमने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से हमारे जीवन में जो डेस्टिनी है, डिस्ट्रेसेस, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सब फिक्स है और आएगा वो हमारे लाइफ में। पर्सन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई ओन मिस डूइंग आई एम सफरिंग। जो पर्सन है वो इंस्ट्रूमेंट है बस। जी प्रभु जी। जी। हाँ, तो विद दिस विल स्टॉप। आप लोगों के पास क्विज का लिंक आ गया है, आप लोग क्विज को अटेंड कर सकते हैं। और अभी हम आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।